تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے واضح کیا ہے کہ ان کی حکومت ریاست کی ترقی کے لیے پابند عہد ہے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے اجلاس کے دوران چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اپنی تقریر میں اراضی حصول کے سلسلے میں کسانوں کو ماضی میں درپیش چیلنجز کی یاد دہانی کروائی اور مولانا ساگر اراضی حصول کے دوران کسانوں پر ہوئے حملوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ کسانوں کو پہلے فی ایکڑ 3 لاکھ روپے معاوضہ ادا کیا گیا تھا، لیکن ان کی جدوجہد کو دیکھتے ہوئے اس معاوضے کو بڑھا کر 10 تا 12 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کوڑنگل میں صنعتوں کے قیام کے لیے اراضی کے حصول کے دوران 20 لاکھ فی ایکڑ معاوضے کا اعلان کیا گیا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ اندرا مکانات اور 150 گز کے پلاٹس کے ساتھ کسانوں کو بہتر مدد فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ماضی کی غلطیوں کو درست کرنے اور کسانوں کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کی حکومت ریاست کی ترقی کے لیے پابند عہد ہے۔ چیف منسٹر نے انکشاف کیا کہ ایک سال میں 2.2 لاکھ کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کو راغب کیا گیا ہے۔ انفوسس اور وپرو جیسی کمپنیاں ریاست میں پھیل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ موسی ندی کی بحالی کے منصوبے، میٹرو کی توسیع اور آؤٹر رنگ روڈ جیسے منصوبوں کے ذریعے لوگوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چیف منسٹر نے وضاحت کی ہے کہ ان کے تمام اقدامات کا مقصد ماضی میں لوگوں کو درپیش مشکلات کو سمجھنا، مقامی ضروریات کے مطابق کام کرنا اور سب کے تعاون سے ریاست کو آگے لے جانا ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے تلنگانہ اسمبلی میں کئی عوامی مسائل اٹھائے۔ تصرف بل پر تقریر کے دوران قائد مخانہ نے اسمبلی میں ہی روزہ کشائی کی۔ تلنگانہ اسمبلی میں مسلسل 5ویں دن بجٹ پر جاری بحث میں حصہ لیتے ہوئے کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی جانب سے کئی عوامی مسائل اٹھائے گئے۔ دریں اثنا انہوں نے تصرف بل پر بھی مباحثے میں حصہ لیا اور 1 گھنٹہ طویل تقریر کی۔ اس دوران انہیں اور ان کے ساتھی مجلسی ارکان اسمبلی کو ایوان میں ہی روزہ کھولنا پڑا۔ دوران تقریر افطار کا وقت ہونے پر کرسی صدارت سے اجازت کے بعد چند سیکنڈز کا وقفہ لیتے ہوئے قائد مجلس نے پانی سے روزہ کھولا۔ انہوں نے حکومت کی مالیاتی پالیسیوں اور ترقیاتی ترجیحات پر کئی سوالات اٹھائے۔ Sir, if you could just give me some few seconds, sir, I'll just break my fast, sir. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں سن رہا تھا ہمارے بی جے پی کے دوست کہہ رہے تھے کہ ہم دلی نہیں آئیں گے جب تک بی سی کے لسٹ میں سے مسلمان کو نہیں نکالیں گے، ہم وہ ڈیلیگیشن میں دلی کو نہیں آئیں گے۔ اچھا، بی سیز کو ریزرویشن دینا ہے تو آپ کو مسلمان کا بہانہ لینا ہے، لیکن آندھرا اور بہار میں جہاں پہ چندرا بابو اور نیتیش مسلمانوں کو ریزرویشن دے رہے ہیں تو ان کا سپورٹ لے کر آپ اپنی گورنمنٹ کو چلاتے ہیں۔ حکومت ہونا ہے تو سپورٹ لینا ہے، تو آپ بول دو نیتیش کو، آپ بول دو پاسوان کو، آپ بول دو چندرا بابو نائیڈو کو، تم بی سی کے لسٹ میں سے مسلمانوں کو نکال دو، اور جب تک نہیں نکالیں گے ہم تمہارا سپورٹ نہیں لیں گے حکومت چلانے کے لیے۔ بولو نا ایسا، یہ نہیں بولتے۔ شہرآباد کے پولیس کمشنر سی وی آنند نے پرانے شہر کا دورہ کرتے ہوئے جمعۃ الوداع کے موقع پر کیے گئے صیانتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ شب قدر کے موقع پر اور جمعۃ الوداع کے پیش نظر حیدرآباد کے پولیس کمشنر سی وی آنند نے پرانے شہر کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے جمعۃ الوداع کے پیش نظر کیے گئے صیانتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ ساؤتھ زون کی ڈی سی پی سنیہا مہرا و دیگر پولیس اہلکار موجود تھے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے سی وی آنند نے بتایا کہ جمعۃ الوداع کے پیش نظر سخت ترین حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ جگہ جگہ پولیس پکٹس بھی لگائے گئے ہیں اور ریپڈ ایکشن فورس کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ انہوں نے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو عید الفطر کی پیشگی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ آج شب قدر اور کل جمعۃ الوداع کے یہ موقع پر ہمارا پورا بندوبست حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے کیا گیا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پر، ہر چورستے پر پکٹ ہے، پورے آفیسرز، ہمارے پورے افسران جو ہیں ڈپلائیڈ ہیں اور رات بھر پیٹرولنگ کرتے رہیں گے۔ اور نوجوانوں کا موومنٹ بھی ابھی شروع ہوا ہے،
प्रेयर्स ख़त्म हुए हैं और सब लोग बंदोबस्त में मसरूफ़ हैं। सबको, मुसलमान भाइयों बहनों को, सभी को सिटी पुलिस के तरफ से मैं शुभकामनाएं देता हूं और सब कुछ पीसफुल है। और रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो, उसको भी हमने मांगा था और वो भी आए हैं, उनका भी डिप्लॉयमेंट हुआ है और पूरा बंदोबस्त जो है पूरी तरीके से हमने। नंदियाल में भीख मांगने को लेकर ख्वाजा सराओं के दो गिरोह में झड़प हुई। रूरल पीएस के रूबरू दोनों गिरोह ने एक दूसरे पर मिर्च पाउडर और पत्थर फेंके, जिससे अफरा तफरी मच गई। तफसीलात के मुताबिक भीख मांगने को लेकर पनियाम और नंदियाल के ख्वाजा सराओं के गिरोह के दरमियान तवील अरसे से तनाज़ा चल रहा है। पनियाम का गिरोह नंदियाल में भीख मांगने की कोशिश कर रहा है, वहीं नंदियाल का गिरोह उन्हें रोक रहा है। इसी सिलसिले में रूरल पीएस के रूबरू दोनों गिरोह आपस में टकरा गए। दोनों ने एक दूसरे पर मिर्च पाउडर और पत्थर फेंके, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। इतला मिलते ही टू टाउन रूरल पुलिस ने वहां पहुंचकर लाठी चार्ज किया और 100 से जायद ख्वाजा सराओं को हिरासत में ले लिया। अलवाल के रामालय में एक मकान में सरखे की वारदात पेश आई। सारिकीन 30 तोले सोना और 70,000 रुपये नकद रकम लेकर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक अलवाल के रामालय में सारिकीन ने एक मुखफिल मकान को अपना निशाना बनाया और सरखे की वारदात अंजाम दी। बताया जाता है कि मकीन अपने रिश्तेदारों के घर गए हुए थे। मालिक मकान ने इंकशाफ किया कि सारिकीन ने 30 तोले सोना और 70,000 रुपये नकद रकम का सरखा किया है। इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। मालिक मकान की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सारिकीन की तलाश का आगाज किया है। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू ने वाज़ेह किया कि फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट का मकसद ग्रेटर हैदराबाद के इलाके की बेहतरीन तरक्की को फरोग़ देना है। ऐवान असम्बली में बहस के दौरान वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू ने कहा कि फ्यूचर सिटी यू टर्न नहीं है बल्कि राइट टर्न है, ताकि हैदराबाद की हकीकी सलाहियतों का अदराक किया जा सके। उन्होंने केटीआर पर तनकीद करते हुए कहा कि केटीआर जैसे एक बाखबर रहनुमा का गुमराह कुन मालूमात फैलाना मायूस कुन बात है। डी श्रीधर बाबू ने कहा कि फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट, जिसे फोर्थ सिटी के नाम से भी जाना जाता है, का मकसद ग्रेटर हैदराबाद की बेहतरीन तरक्की को फरोग़ देना है। फ्यूचर सिटी के अहम पहलू हैं। उन्होंने बताया कि ग्रीन फार्मास्यूटिकल सनतों के लिए एक वक्फ मरकज़ होगी, जबकि AICT मसनवी ज़हानत और टेक्नोलॉजी के लिए एक खुसूसी इलाका रहेगा। उन्होंने हैदराबाद के रोशन मुस्तक़बिल की तामीर के लिए मिलकर काम करने का पैगाम दिया है और लोगों के जहनों को बदएतमादी और गुमराह कुन मालूमात से ना भरने का भी मशवरा दिया है। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमा को हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज जुमा का पुरअमन तौर से इख्तिताम हुआ। हज़ारों मुसल्लियों ने नमाज अदा की। माह रमज़ान के आखिरी जुमा को शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में मुसल्लियों का बड़ा इज्तिमा देखा गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी समेत हज़ारों मुसल्लियों ने नमाज अदा की। मक्का मस्जिद समेत हैदराबाद की दीगर मसाजिद में रमज़ान के आखिरी जुमा के मौके पर मुसल्लियों की कसीर तादाद नजर आई। रक़त अंगेज़ दुआएं भी की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ पुरअमन एहतजाज की कॉल पर कई मुसल्ली वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत में अपने बाजू पर सियाह पट्टियां बांधे नजर आए। माह रमज़ान के आखिरी जुमा को उत्तर प्रदेश के संभल में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। 1300 से ज़ायद CCTV कैमरों और ड्रोन्स के जरिए इलाके की निगरानी की गई। उत्तर प्रदेश के संभल में रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमा की नमाज के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम देखने को मिले। शाही जामा मस्जिद समेत शहर की 400 ज़ायद मसाजिद में नमाज जुमा अदा की गई। इस मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और सिविल पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। दरियासना पुलिस अफसरान ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। ड्यूटी पर तैनात एहलकारों को मुस्तैद रहने की भी हिदायत दी गई। बताया जाता है कि इलाके में 1300 से ज़ायद CCTV कैमरे नस्ब किए गए और ड्रोन्स के जरिए भी निगरानी की गई।
पुलिस का कहना है कि हसास इलाकों में इजाफी फोर्स तैनात की गई है ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से फौरन निपटा जा सके। आवाम से इश्तियाल अंगेज अफवाहों पर ध्यान न देने और पुलिस के साथ ताउन करने की अपील की गई है। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने नामपल्ली के सरकारी अस्पताल में अमले की कमी पर हुकूमत को मुतवज्जो किया और उसे जल्द अज जल्द हल करने का मुतालबा किया। तेलंगाना कानून साज असम्बली के इजलास में कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने सरकारी अस्पतालों में अमले की फुकदान की वजह से पेश आ रहे मसाइल को उजागर किया। उन्होंने अपने हल्के नामपल्ली के सरकारी अस्पताल में अमले की कमी की वजह से मरीजों को पेश आ रही दुश्वारियों को भी हुकूमत के इल्म में लाया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जल्द अज जल्द इस मसले को हल करे और सरकारी अस्पतालों में अमले का तकर्रुर करते हुए मरीजों को राहत पहुंचाए। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने शमशाबाद मंडल के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने के बाद गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह किया है। रिहायशियों से शिकायत मौसूल होने के बाद हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने शमशाबाद मंडल में कई अहम मुकामात का दौरा किया, जिनमें गटला बेगमपेट, माधापुर में विस्पर वैली के करीब वाक़ इलाका, फिल्मनगर बस्ती, तोंडापल्ली गांव व दीगर शामिल हैं। इन इलाकों में सरकारी अराजियात खतरे में बताई गई हैं। मज़कूरा मुकामात का मुआयना करने के बाद हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया और अवामी अमला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाइड्रा के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने इस बात का भी इयादा किया है कि हाइड्रा ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन को सख्ती से नाफिज करने को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। शहर हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स के KBR पार्क की अराज़ी पर कब्जा किया जा रहा है। GHMC के वॉकवे को मुनद्दम कर तामीरी काम अंजाम देने के बावजूद GHMC की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। शहर के वस्त में दिन की रोशनी में एक पार्क की जगह पर कब्जा कर लिया जा रहा है। पार्किंग कॉम्प्लेक्स तामीर करने के नाम पर बंजारा हिल्स के KBR पार्क में GHMC के वॉकवे को मुनहदम कर वहां तामीरी काम जारी हैं। मख्तस अराजी से जायद अराजी पर कब्जा करते हुए तामीरात की जा रही हैं। इसके बावजूद भी बल्दी हुकाम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। भारत राष्ट्रीय समिति के MLC के कविता ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर इख्तिदार में आई है, उसे अब सच बोलने की जरूरत है। BRS MLC के कविता ने जुमा को मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कांग्रेस कायदीन पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस कायदीन की जानिब से रियासत के लिए हासिल किए गए खर्च से मुताल्लिक दिए जा रहे बयान पर कहा कि मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट में ये वाज़ेह तौर पर कहा था कि 4,42,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया था, लेकिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ये झूठी खबरें फैला रहे हैं कि उन्हें 8 लाख करोड़ रुपये का कर्ज अदा करना है। ये कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलकर इक़्तिदार में आई है, उसे अब सच बोलने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी के लिए ये तस्लीम करना ही मुनासिब होगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। BRS रहनुमा ने बताया कि वजीर आपाशी ने खुद कौंसिल को बताया है कि कालेश्वरम बैरेजेस के गिरने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने पूछा है कि क्या ये कांग्रेस हुकूमत की नाकामी नहीं है कि वो आपाशी के लिए पानी फराहम नहीं कर पा रही है। BRS MLC के कविता ने ये इंकिशाफ किया है कि भारत राष्ट्रीय समिति हमेशा कांग्रेस की नाकामियों को बेनकाब करने का काम करती रहेगी और पार्टी की सिल्वर जुबली तकरीब जो कि 27 अप्रैल को मुनक़िद की जाएगी, बड़े पैमाने पर मुनक़िद होगी और इसमें हज़ारों कारकुनान शिरकत करेंगे। भारत राष्ट्रीय समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव इस मौके पर अवाम से भी खिताब करेंगे। संगारेड्डी के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस परितोष पंकज ने अपनी टीम के साथ जामा मस्जिद पहुंचकर मुसल्लियों से मुलाकात की और उन्हें शब क़द्र और ईद उल फित्र की पेश की मुबारकबाद दी। शब क़द्र के मौके पर और जामा मस्जिद के सदर गौस अली की दावत पर परितोष पंकज सुपरिटेंडेंट संगारेड्डी ने अपनी टीम के साथ जामा मस्जिद का दौरा करते हुए तमाम मुसल्लियों से मुलाकात की। इस दौरान मुसल्लियों को शब क़द्र और ईद उल फित्र की पेश की मुबारकबाद भी दी गई। तमाम मुसल्लियों के बशमूल सदर मजलिस गौस अली और सरपरस्त आला ज़बी मुशर्रफ व दीगर कई अफराद की जानिब से पुलिस सुपरिटेंडेंट और उनकी टीम का इस्तकबाल किया गया और उन्हें तहनीत पेश की गई।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से जुमातुल विदा को अपने बाजू पर काली पट्टी बांध कर वक्फ बिल के खिलाफ एहतजाज करने की अपील की है। वक्फ तरमीमी बिल 2025 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम दिल्ली के जंतर मंतर और पटना के धरना स्थल पर मुसलमानों के जोरदार एहतजाज ने बीजेपी की हलीफ जमातों की सफ़ों में हलचल मचाने का काम किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 29 मार्च को विजयवाड़ा में भी एक पुरजोर एहतजाज की क़यादत करने जा रहा है। और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह आगाह किया है कि वक्फ तरमीमी बिल एक घिनौनी साजिश है और इसका वाज़ेह मकसद मुसलमानों को उनकी मसाजिद, ईदगाहों, मदारिस, दरगाहों, खानाखाहों, कब्रिस्तान और उनके खैराती इदारों से महरूम करना है। और अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो सैकड़ों मसाजिद, ईदगाहें, मदारिस, कब्रिस्तान और खैराती इदारे मुसलमानों के हाथ से निकल जाएंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना उमरेन महफूज रहमानी ने एक वीडियो जारी करते हुए मुल्क के हर मुसलमान से पुरजोर अपील की है कि वो जुमातुल विदा के मौके पर अपने बाजू पर काली पट्टी बांध कर मस्जिद पहुँचे और अपने गम व गुस्से का पुरअमन व खामोश मुजाहरा करें। उन्होंने जुमातुल विदा के मौके पर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज करने के बाद उसकी वीडियो और फोटोज हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड करने को भी कहा है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज की ज़ेर निगरानी मस्कती ग्राउंड के करीब राशन किट्स तकसीम की गई। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर और याकुतपुरा के MLA जाफर हुसैन मेराज की ज़ेर निगरानी AIMIM के यूथ आइकन यासर अरफात ने सादिक सिराज AIMIM सीनियर लीडर के हमरा मस्कती ग्राउंड दाराबजंग कॉलोनी के करीब ज़रूरतमंदों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर इब्तदाई सुदूर मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान व दीगर भी देखे गए। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ खामोश एहतजाज के एक हिस्से के तौर पर नमाज जुमा के लिए मक्का मस्जिद आने वाले मुसल्ली अपने और दूसरों के बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधते नजर आए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अलविदा जुमा के मौके पर खामोश एहतजाज करने की अपील की गई थी। मुसलमानान से कहा गया था कि वो अपनी बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांध कर खामोश एहतजाज दर्ज करवाएं और वक्फ तरमीमी बिल की सख्ती से मुखालिफत करें। जुमा को तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने वाले कई मुसल्ली अपने बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधते नजर आए। क़ब्लज़ी मुसलमानों में सियाह पट्टियां भी तकसीम की गई। कुछ मुसल्लियों को अपने और दूसरे मुसल्लियों के बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधते हुए भी देखा गया। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलॉग कॉलेज में तकरीर के दौरान तलबा के एहतजाज का सामना करना पड़ा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलॉग कॉलेज में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने खिताब भी किया और तकरीर के दौरान उन्हें तलबा के एहतजाज का सामना करना पड़ा। तलबा ने पोलिंग के बाद तशद्दुद और आरजीकार असमत दरी केस पर नारेबाजी की और सवालात उठाए शदीद एहतजाज किया। इस दौरान मज़ीद कशीदगी उस वक्त देखी गई जब मुजाहिरीन ने बंगाल में हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर तशवीश ज़ाहिर की, जिस पर ममता बनर्जी ने जवाब दिया कि वो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए हैं। SFI UK की क़यादत में होने वाले मुजाहरे में ममता बनर्जी की हुकूमत पर करप्शन और जमहूरियत को दबाने का इल्ज़ाम लगाया गया। ममता बनर्जी ने एहतजाज करने वालों को फ़िरक़ा परस्त दोस्त करार दिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने गच्चीबौली के इंडोर स्टेडियम में मुनक्किद कौमी कराटे चैंपियनशिप 2025 की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी खेलों के फरोग में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। हैदराबाद के गच्चीबौली के इंडोर स्टेडियम में कौमी कराटे चैंपियनशिप 2025 का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर TPCC के सरबराह महेश कुमार गौड़, वजीर पूनम प्रभाकर और असम्बली के स्पीकर गदम प्रसाद कुमार व दीगर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी खेलों के फरोग में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसी भी किस्म के खेलों के मुकाबलों के इनेकाद के लिए मुकम्मल तैयार है।
महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मुल्क में बहुत से कराटे खिलाड़ी हैं। साल 2030 के ओलंपिक्स के लिए खिलाड़ियों को तरक्की करनी चाहिए और इस तरह से तैयारी करना चाहिए कि वो इन मुकाबलों में हिस्सा ले सकें। उन्होंने बताया कि एशियन कराटे चैंपियनशिप भी आने वाले दिनों में हैदराबाद शहर में मुनक्किद की जाएगी। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मस्जिद हकीम मीर वजीर अली में जल्द से यौमुल कुरान से खिताब करते हुए रियाकारी से बचने की तलकीन की। रमज़ान मुबारक के चौथे जुमे यानी अलविदा जुमा के मौके पर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम मस्जिद हकीम मीर वजीर अली में जल्द से यौमुल कुरान का इनेकाद अमल में आया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जलसे से खिताब किया और मुसलमानों को रियाकारी से बचने की तलकीन की। उन्होंने रमज़ान के आखिरी अशरे में कसरत से दुआएं करने, इबादतों का एहतमाम करने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने का भी मशवरा दिया। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ खामोश एहतजाज में हिस्सा लिया। उन्होंने बाजू पर सियाह पट्टी बांधकर शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा में नमाज जुमा अदा की। मरकजी हुकूमत के मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानाने मुल्क से अलविदा जुमा को खामोश एहतजाज करने की अपील की थी। बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधने के लिए कहा गया था। दूसरी जानिब यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की जानिब से भी खामोश एहतजाज की कॉल दी गई थी। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के अलावा शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा के मुसल्लियों ने भी वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अपना खामोश एहतजाज दर्ज करवाया। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया। वो अपने बाजू पर सियाह पट्टी बांधे नजर आए। उन्होंने शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा में नमाज जुमा अदा की। आज माह सियाम के जुम्मतुल विदा आखिरी जुमा, इस मौके पर जो मौजूदा पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल जो पेश किया गया, उसके पुरअमन एहतजाज के तौर पर जमहूरियत को बचाने के लिए उम्मत मुसलमान की, सारे हिंदुस्तान के उम्मत मुसलमान की आवाज़ को ऐवानों तक, पार्लियामेंट तक, सुप्रीम कोर्ट तक और मरकज़ी हुकूमत तक पहुंचाने के लिए शरीयत को बचाने का मुसलमानों का सबसे बड़ा इदारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर जो नमाज के बाद तमाम हिंदुस्तान के मुसल्लियान जो जुम्मतुल विदा को जाएंगे, वो लोग अपने हाथ को काली से जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,